Hello, all my dear students. A precious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your science teacher, and I am welcoming you to all once again to your official YouTube channel, that Ajay Tiwari Science Classes. All my dear students, as you know, we have recently completed chapter number 9, that was reproduction in animals, and after that we will start chapter number 10, that is the reaching the age of adolescence. So without wasting the time, I am just straightforward moving towards your chapter number 10, that is what, reaching the age of adolescence. All dear students, first of all we will know about that what are the main topics that we have to study here. The first one is that we will study here is stages of life. Stages of life. यहाँ से हम देखेंगे कि लाइफ में कौन कौन सी स्टेज होती हैं और फिर उन स्टेजेस में से एडोलसेंस कहाँ है, जिसे आप किशोरावस्था कहते हो. ठीक है. देन आफ्टर एडोलसेंस वी विल डिस्कस अबाउट प्यूबर्टी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. Puberty and its characteristics. It means that what is puberty and what are the certain symptoms or sign, or we can say that characteristics on the behalf of that we can say that now a person is at puberty. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे stages of life, then we will complete puberty and its characteristics, and then after we will discuss about the secondary sexual characters. Secondary sexual characters. Then after we will also discuss about the endocrine glands and its hormones. endocrine gland और उनके hormones की भी हम यहाँ से स्टडी करेंगे. Then we will study about the reproductive health. There will be basic idea of reproductive health, because you will get reproductive health chapter in class 4 as is chapter number 4. यानी reproductive health आपको chapter number 4 के रूप में मिलने वाली है class 12th में. So इस पूरे chapter में we are going to discuss about stages of life, in which we will discuss various stages such as infancy, और हम कह सकते हैं आपका बाल्यकाल. ठीक है. various other, and next puberty and changes that takes place during puberty, secondary sexual characters and hormone responsible for these endocrine glands and their hormones and their functions, as well as reproductive health. So all these points will be discussed. So without wasting the time, I am moving towards the first, that is stage of life. Okay बेटा, तो यहाँ से हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ लाइफ. ठीक है. ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बेटा. देयर आर एज मनी एज द फर्स्ट, दैट इज नोन एज इनफैंसी. इनफैंसी यानी सबसे अच्छी एज होती है जहाँ आप अपनी मम्मी पापा के गोद में होते हैं बेटा. दिस इज 0 to 2 years. देन आप आते हैं सेकेंड स्टेज, दैट इज नोन एज childhood. Then the third stage is known as adolescence. Third one is here adolescence. Okay बेटा. अगला आप देखेंगे adulthood. एक लास्ट में देख लीजिए, that is known as old age. ठीक है. वो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें हम एडल्टहुड में कंसीडर कर लेते हैं. जैसा मैंने आपको बताया, देयर आर इन्फेंसी इन बिटवीन 0 to 2 years. उसके बाद बेटा अभी आप क्या करते हो, जब आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हो, वो आपका क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्डहुड होता है. ठीक है. तो कितने से कितने ईयर्स तक होता है वो, ये आपका होता है बेटा 3 to 12 years. ठीक है. यहाँ से देखिए 0 to 2, ये 3 से 12. एडोलसेंस आपका कहाँ होता है बेटा, 13 से 19. एडोलसेंस 13 to 19. In some books it is also written as
13 to 17. सो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन कंसीडर बोथ. ठीक है, दिस इज लेट एडल्टहुड स्टेट और एडोलसेंस स्टेट एंड दिस इज अर्ली एडोलसेंस स्टेट. ओके, अब आपका एडल्टहुड कहाँ पे आएगा? एडल्टहुड फ्रॉम 20 to 40 years and old age 40 years onwards. 40 year onwards. Okay, so there are as many as 5: old age 40 years and onwards, adulthood 20 years and onwards, adolescence 13 to 19, as well as childhood 3 to 12 and infancy 0 to 2 years. Yes, all dear students, you can see here various stages. एक छोटा सा बच्चा दिख रहा होगा, फर्स्ट स्टेज, देन चाइल्डहुड, देन थर्ड एडोलसेंस, एडल्ट एंड द लास्ट वन इज ओल्ड. इन पिक्टोरियल फॉर्म ऑल दीज आर गिवन, यू कैन सी एंड इमेजिन. बेटा अब इसको हम अदर वर्ड्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज इन्फेंसी? दिस इज द स्टेज ऑफ ग्रोथ of baby. This is the stage of growth of baby between 0 to 2 years. ठीक है, ये क्या कह सकते हैं? This is the stage of growth between 3 to 12 years. ठीक है, सिंपल है. एडोलसेंस क्या है? This is the stage of growth between 13 to 17 and this is known as critical stage of growth, because during this there are various changes in our body takes place. Adulthood क्या होता है? This is the stage of growth, stage of complete growth, we can write stage of complete growth between 20 to 40 years and individual become mature and individuals become mature. यहाँ पे इंडिविजुअल्स क्या हो जाते हैं बेटा? मैच्योर हो जाते हैं. यहाँ पे वो क्या कर रहे होते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को वो अटेन कर रहे होते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ. नाउ वी विल क्विकली कम टू द आवर पॉइंट, दैट इज व्हाट? एडोलसेंस. यानी अब हम यहाँ से देखेंगे एडोलसेंस. ओके देन स्टूडेंट्स, सो यहाँ से अब आप देखेंगे क्या? एडोलसेंस. व्हाट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ दिस एडोलसेंस? reaching the age of reproductive maturity. Reaching the age of reproductive maturity is known as adolescence. Reaching the stage of reproductive maturity is known as adolescence, where our body start developing the sex organs, sense organs, and they become functional. यानी यहाँ पे क्या होता है बेटा? जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत से चेंजेस होते हैं, एंड ड्यू टू दैट चेंजेस आवर बॉडी इज जस्ट अप्रोचिंग टूवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. यानी अभी वो जो बाल्यावस्था में आप लोग थे, चाइल्डहुड में थे, अब आपकी अगली स्टेज आने वाली है, दैट इज नोन एज एडोलसेंस, जिसे आप किशोरावस्था कहते हो. हियर ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोन्स, ड्यू टू वेरियस बॉडी चेंजेस, now organism is able to gain
the reproductive maturity. So this was all about adolescence. Now all those changes those takes place at adolescence stage we studied in puberty. यानी जो भी चेंजेस वहाँ पे हैं, कहाँ पे, एडोलसेंस में बॉडी में आ रहे हैं, उस सभी का ऑनसेट हम कहाँ पढ़ते हैं, प्यूबर्टी में पढ़ते हैं. ओके बेटा, इसकी अब दूसरी डेफिनेशन अगर हम आपसे कहें क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं दिस इज द स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये भी एक अच्छी खासी डेफिनेशन है. व्हाट इज एडोलसेंस? एडोलसेंस इज द स्टेज, वी कैन राइट हियर, adolescence is a stage of transition between childhood and adulthood, nearly takes place 13 to 17 years, and also known as टीनएजर्स, ऑल्सो नोन एज टीनएजर्स. ठीक है, तो आपने देखा भी होगा आपके अड़ोस पड़ोस में, अगर आप पहले क्लास नर्सरी में पढ़ते थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ तक आपने जो पढ़ाई की वो क्या थी, आपकी चाइल्डहुड थी. उसके बाद जब आप 8th तक पहुंच जाते हैं या 7th में पहुंच जाते हैं, तो वो स्टेज जो आपकी बॉडी की डेवलपमेंट की होती है उसी को हम कहते हैं टीनएजर्स, जिसमें फ्रेंडशिप की बहुत ज़्यादा भावनाएं आपके अंदर डेवलप होती हैं, फ्रेंड्स नए नए आप बनाते हैं. सो ऑल दोज स्टेज आर नोन एज टीनएजर्स. ठीक है, तो अप टू क्लास 5th और 6th वी कैन से दैट दैट इज व्हाट चाइल्डहुड, एंड फ्रॉम 7th ऑनवर्ड्स और 8th ऑनवर्ड्स वी कैन से दैट इज नाउ teenagers, or we can say that adolescence. Okay dear students, now we will discuss about the puberty and changes that takes place during puberty. ओके बेटा, तो यहाँ से आप देखेंगे प्यूबर्टी. व्हाट इज प्यूबर्टी? इट इज द स्टेज when sex hormones are produced, when sex hormones are produced in our body, sex hormones are produced in our body, and due to that they become sexually mature. They become sexually mature and start producing gametes. For example, in the case of boys, they are start producing sperms, and in the case of girls, they start producing egg. ओके बेटा, तो हम कह सकते हैं प्यूबर्टी क्या है? इट इज द स्टेज व्हेन सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, एंड ड्यू टू दैट दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द गैमेट. एक ऐसी स्टेज जहाँ पे सेक्स हार्मोन के इन्फ्लुएंस के कारण हमारी बॉडी में ऐसा चेंज आता है कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो मैच्योर हो जाते हैं और वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं. दैट स्टेज इज नोन एज व्हाट? प्यूबर्टी. ओके, सेकेंड, गर्ल्स attain puberty at, we can write, 11 years, and boys attain puberty at, we can write, 12 to 14 years. 12 to 14 years. It means that we can say that girls, यहाँ से आप देख सकते हैं, attain puberty, girls attain
प्यूबर्टी फास्टर दैन बॉयज़, फास्टर दैन बॉयज़, यानी गर्ल्स में प्यूबर्टी बेटा जो होती है वो बॉयज़ के कंपैरिजन में क्या होती है, फास्ट होती। इट मीन्स दैट बॉयज़ अटेन प्यूबर्टी लेटर ऑन एंड गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी अर्लियर टू देम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्यूबर्टी। नाउ वी विल सी व्हाट आर द सर्टेन चेंजेस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ओके बेटा, तो यहाँ से देखेंगे चेंजेस ड्यूरिंग puberty, changes during puberty. Yes dear students, you can see various changes at puberty at the face, sweat, menstruation, height, breast, hair development, and all these are shown in the case of females. Yes, you can see the changes in the case of males: broadening of the shoulder or widening of the shoulders, hairs under the arms, as well as public hairs. It means that हाथ पैर पे आपके hair, neck, chest and leg muscles get bigger and stronger, muscles develop होती हैं, facial hair दाढ़ी मूछें आती हैं। फीमेल्स में फिर से दिखाया गया है पूरी बॉडी क्या हो जाती है, कर्वियर हो जाती है फैट डिपोजिशन की वजह से। यहाँ से देखते हैं वेरियस चेंजेस। फर्स्ट, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट। Second, change in voice, change in voice. Next, change in body shape, change in body shape. Next, increased activity of sweat and oil gland, sweat and oil gland. Next, development of sex organs, development of sex organs, release of sex hormones, release of sex hormones that stimulate gamete production, So all these are the changes at the time of puberty. 1, 2, 3, 4, 5, 6 changes. There are various more. We can write production of sperm, we can also write, यहाँ से एक और देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके बेटा, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे इंक्रीज इन हाइट। हमने बताया था प्यूबर्टी पे क्या होता है, हाइट इंक्रीज होती है। यहाँ पे हम देखेंगे सडन इंक्रीज इन हाइट, due to secretion of growth hormone, from पिट्यूटरी ग्लैंड। बाद में हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ तेजी से क्यों होती है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड व्हेन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, पीपल ऑफन सफर फ्रॉम गिंगाटिज्म, यानी भीम कायता। जैसे आपने द ग्रेट खली को देखा होगा, तो वो क्या है, वो एज ए रिजल्ट है किसका, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एंड इफ growth hormone is released or secreted in lesser amount, then people will suffer from dwarfism। यानी आपने राजपाल यादव को देखा होगा, छोटी सी हाइट है, तो अगर हाइट नहीं बढ़ती है तो उसको हम dwarfism कहते हैं, और अगर हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसको हम गिंगाटिज्म कहते हैं। वो होता क्यों है, ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, गिंगाटिज्म और
लेस सिक्रीशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉर्फिज्म। तो यहाँ से हमने पहला देखा इंक्रीज इन हाइट। लेट्स कंसीडर सेकेंड वन, चेंज इन बॉडी शेप। चेंज इन बॉडी शेप, actually why the body shape got changed? So change in body shape takes place due to growth of muscles, due to growth of muscles and fat। ठीक है, यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आप मस्कुलर होते जाते हो, आपके बॉडी में फैट का डिपोजिशन होता जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ से देखेंगे चेंजेस इन बॉयज, यानी बॉयज में कौन कौन सा चेंजेस है। द फर्स्ट, वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स, वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स। ओके बेटा, सेकेंड है वाइडनिंग ऑफ हिप्स एंड various other parts। ठीक है, अब यहां से देखेंगे चेंजेस गर्ल्स में क्या होते हैं। चेंजेस इन गर्ल्स, यहाँ से एक नोट लगाएंगे बेटा पहले गर्ल्स में चेंजेस जानने से पहले। इन बॉयज मस्कुलर टिश्यू grows faster than fatty tissue, यानी बॉयज में मस्कुलर टिश्यू ज़्यादा ग्रो करते हैं और फैटी टिश्यू गर्ल्स में ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो गर्ल्स में चेंजेस क्या होता है, यहाँ से आप देखेंगे वाइडनिंग ऑफ हिप्स एंड चेस्ट, वाइडनिंग ऑफ हिप्स एंड चेस्ट एंड डिपोजिशन ऑफ fat in lower and upper portion of the body, in lower and upper portion of the body, making them curved। यानी होता क्या है कि जो फीमेल्स की बॉडी है उसमें कर्वेचर डेवलप हो जाते हैं एंड दैट कर्वेचर्स आर डेवलप ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द फैट एट स्पेसिफिक प्लेस। यानी जो लोअर पोर्शन है वहाँ पे फैट का डिपोजिशन, अपर पोर्शन है वहाँ पे फैट का डिपोजिशन। तो फीमेल्स में फैट का डिपोजिशन फास्टर होता है। इन द केस ऑफ बॉयज देयर इज ए फास्टर ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड इन द केस ऑफ गर्ल्स देयर इज ए फास्टर ग्रोथ ऑफ फैटी टिश्यूज। Okay, so that's why the shape of male and female got changes। Okay बच्चों, तीसरा पॉइंट देखते हैं, change in voice। So change in voice takes place due to growth of voice box or larynx। Okay, due to growth of voice box or larynx, and in males it is larger than females, hence females produce sound, we can write shrill sound। यानी फीमेल्स में आपने देखा होगा साउंड जो प्रोड्यूस होता है अगर बहुत तेज बोलती है तो चुभता है, ठीक है, क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स है या लैरिंग्स है वो क्या हो जाता है, छोटा होता है, मेल्स का बड़ा होता है। जैसे यहाँ से देखिए ये आपको जो दिख रहा है इसी को कहते हैं वॉइस बॉक्स या हम कहते हैं लैरिंग्स। और जब ये पूरी तरह से ग्रो कर जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है, दैट इज नोन एज एडम्स एप्पल। यानी फुल्ली डेवलप वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स
इज नोन एज एडम्स एप्पल, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, दिस वन. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट चेंज इन वॉइस. लेट्स डिस्कस वन मोर. increased activities of sweat and oil gland. To that you often seen that pimples or spots may appear. तो ये तो बेटा था चौथा पॉइंट. एक और देख लेते हैं. प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन. इसका मतलब क्या हुआ? मेल एंड फीमेल start producing sex hormones, and due to that they produce male and female gamete. यानी सेक्स हार्मोन रिलीज होने की वजह से बॉडी में चेंजेस भी आते हैं और गैमीट्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं. मेल में बेटा, मेल का जो सेक्स हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन. ओके, एंड इन द केस ऑफ फीमेल्स यू विल सी इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन. ठीक है बेटा, तो ये तो थे 5 प्रीमियर कैरेक्टर्स. लास्ट में एक और डिस्कस करते हैं और आज की क्लास ओवर करते हैं. ओके बेटा, हम यहां से देखेंगे आप इफेक्ट ऑफ सेक्स हार्मोन. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे फीमेल्स में सबसे पहला होता है बिगिनिंग ऑफ, और वी कैन राइट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टेड. यानी फीमेल्स में क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है. एज वेल एज वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन, या हम कह सकते हैं हिप्स, चेस्ट एटसेट्रा. और क्या हो सकता है यहाँ से? श्रिल्ड वॉइस. Okay, so all these are the effects of sex hormone in the case of females. menstrual cycle के बिगिनिंग होना, यानी हिप्स का और ब्रीस्ट का डेवलपमेंट होना, या हम कह सकते हैं पेल्विक रीजन का वाइड हो जाना, श्रिल्ड वॉइस होना. ये कुछ कहाँ से हैं? मेल्स और फीमेल्स में. अब यहाँ से देखेंगे मेल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं. फर्स्ट, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड, जिसे आप दाढ़ी भी कहते हो, एंड और वी कैन राइट फेशियल हेयर. ठीक है, फेशियल हेयर यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि जितने भी तरह के हम लोगों के फेस पे बाल आते हैं, चाहे वो मुस्टैच हो, आपकी मूछें हो, बियर्ड, दाढ़ियाँ हो, ठीक है, या आपके जो हेयर ग्रो करते हैं जेनाइटल पार्ट्स पे, ऑल दीज में अपीयर. नेक्स्ट, डीपनिंग ऑफ वॉइस. ठीक है, shoulders become broad, ETC लगा लीजिए. फीमेल्स में एक पॉइंट हम और बढ़ा सकते हैं, दैट इज होता है डेवलपमेंट ऑफ mammary gland that will later on प्रोड्यूस मिल्क. यानी उसी मेमोरी ग्लैंड की वजह से जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो होगा. इस वजह से ब्रीस्ट क्या होते हैं, उनका डेवलपमेंट हो जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट एडोलसेंस, प्यूबर्टी एंड वेरियस चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर endocrine glands, various hormones, those are secreted by them. So watch the video carefully. If you have any doubt, you can leave in your comments box. So that is all about for today. Like always, have a nice day, keep smiling. Jai Hind.